अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दुनिया चाहे कितनी ही जदीद हो जाए, लेकिन हमारे माशरे में कोई भी काम बड़ों से पूछे बगैर करना आज भी बगावत ही समझा जाता है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। ओ भोले मेरी गल मन के बाहर आ जा। और जे मैनू गुस्सा चढ़ गया ना तो मैं तेरे ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੀ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੀ ਬੈਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੋ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੇਬੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਐਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਚਿਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਐਟਮ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣੀ ਸੀ? ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੱਟਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਹੋ, ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਜਾ ਉੱਠ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ, 2 ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਚਾਹ। ਆਪ ਤੂੰ ਤਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੱਕਾ ਤੇਰਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਤੇ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁੰਬਾ ਕੁੱਟ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਦੁੰਬਾ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਆਪ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਮਾਖੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। ਹਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਗ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਖਲਵੰਡਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਤੋਂ ਅੰਮਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ? ਤੇ ਬੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਗ ਦਿਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੋਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ। ਬਦਨਾਮ ਤੂੰ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਬੂ ਜੀ, 10 ਵਾਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਵਾਂ? ਉਹ ਡੰਗਰਾ ਜਿਹਾ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਰਸ ਲੈਣ, ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਨ ਡੈਣੇ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰ, ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਈ, ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਠੰਡ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਠੰਡ ਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਅਬਦਰ ਰਹੀਮ ਘਰ ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਆ ਜੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਏ? ਇਹਦਾ ਇਸ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ IMF ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਾਟੀ ਉਤਰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ।
ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਜਾਓ, ਪੇਜਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੁਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪੜਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਣ ਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ। ਸਾਲੇਕੁਮ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। क्या हाल है, ठीक है आप? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। बैठे। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਏ ਦੀ ਮਖੌਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੁਰਿਆ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਉਪੜਨ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ? अब्बा जी धुंधी बड़ी है। धुंध तो वाकई बहुत है, हत्ता के मोटरवेज भी बंद हैं। आप किस तरफ से आते हैं? ਓਏ ਧੁੰਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਟਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਮੂੰਹ ਮਲਾਦਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੁੰਦ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, इस दफा धुंध जो है सो तो है, लेकिन साथ में सर्दी भी बहुत पड़ रही है। ਸਰਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਬ ਕੇ ਦੰਦ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਦੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਆਪ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲਣ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਏ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ? ਆਹੋ ਜੀ, ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਉਹ 4 ਵਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਏ। ਹਾਲੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਏ। ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭੋਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾ ਭੇਜੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਭੋਲੇ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਓਏ ਠੰਡ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਸ਼ੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣੇ ਆ ਹੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਬੜੀ ਠੰਡ ਏ ਜਨਾਬ। ਆ ਭੇਜੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਨਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਏ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਰਜ਼ਾਈ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਏ? इनको तो इतनी ठंड लगती है कि 24 घंटे हीटर के आगे बैठे रहते हैं। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਟਰ ਦੇ ਸੇਕ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਠਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, 4 'ਚੋਂ 2 ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਬਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਭੋਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੇਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਫੜ। ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ।
ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਫੇਰ ਪੀਂਦਾ ਏ। इतने भी फर्माबरदार नहीं है ये। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਪਰ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਪਰ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੋਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪੀ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਏਗਾ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਚਾਚਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਐ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਪੈਕੇਜ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭੋਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ। ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਲਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। वैसे भोले, मैं काफ़ी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि आप अपने वालिद की रोक टोक पर इसलिए चिढ़े होते हैं क्योंकि आप ज़मीनी हकाइक से वाकिफ़ हैं। आपको मालूम है पानी कब लगाना है, दूध किसको देना है, किसको नहीं देना। लेकिन बुजुर्गों से अगर पूछ लिया जाए तो इसमें उनकी तसल्ली हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन अगर आपके पूछने पर वो मुतमईन हो जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वैसे माफ कीजिएगा बुजुर्गों, मैं ये देख रहा हूं कि आप भोले को शह दे रहे हैं और वो भाई साहब जो शहर जाना चाहते हैं वो उनके वालिद को शह दे रहे हैं। मसले को सुलझाने की कोशिश करनी है, उलझाना नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਵਾਹ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਓ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी हाँ, बिल्कुल। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ? जी बिल्कुल, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? जी हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। समझ गया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जी बिल्कुल बुजुर्गो। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਆ ਇਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ। ਆ ਜੀਰਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੇਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ। ਹੈਂ? ਉਹ ਬੂਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਬੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਟੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਰੀ ਮੱਝ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਭੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਐ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਲਪਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੱਝ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਏ ਕੋਈ ਝੋਟੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੂੰ ਆਉਣ ਡੇ ਐ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜੇ ਜੀ ਭੋਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। आया जी, मैंने इनको ऐसे तो नहीं कहा, इनकी लाहौर में जॉब लग गई थी, इसीलिए मैंने इनको कहा कि हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ਓਏ ਆਹੋ ਬੇਟੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮੱਝ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਕਵੋ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ए भड़ पा चोरी अफजल दे गई 1.5 लाख रुपया बूरी मज दा। ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਓਏ ਬੂਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ 1.5 ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਿਕ ਗਈ ਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਕਿਤੇ ਭੇਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਿਆ ਉਰਾਂ ਕਰ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਏ। ਹਾਏ ਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭੋਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਭੋਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 100-200 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਈਏ ਫ੍ਰੀ, ਮੁਫਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ? नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, खबर से पहले पेश खिदमत है खबर का थीम सॉन्ग। आजा के बैजा साइकिल ते, आजा के बैजा साइकिल ते, आजा के बैजा साइकिल ते। ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। यार खबर का थीम सॉन्ग है, आई एम सॉरी। आप तो माइंड ही कर गए। आप जब खबर सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई गाना फिट बैठता है। खबर कुछ यूं है कि चीन में एक तालिबे इल्म ने 2 साल के दौरान लोगों को साइकिल चलाने की तरबियत देकर 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अरे वाह। ली नामी ये नौजवान शंघाई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री कर रहा है। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 100-200 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਈਏ ਫ੍ਰੀ, ਮੁਫਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ? और ये तुम बिजनेस माइंडेड नहीं हो। उस लड़के का जेन है बिजनेस वाला। वाह उसने बिजनेस कर लिया, उसके जेन में आया कि मैं क्यों किसी को मुफ्त साइकिल चलानी सिखाऊं, मैं इसकी फीस क्यों ना लूं। अच्छा, अगर गाड़ी चलाने की तरबियत की फीस हो सकती है कि तो साइकिल चलाने की क्यों नहीं हो सकती। अरे वाह। उसने शुरू कर लिया। असल में हुआ कुछ यूं कि इस बंदे को ना जी किसी मल्लेदार ने कहा कि भाई जी हाँ मुझे जरा साइकिल चलानी सिखा दो। उसने कहा कि नो, आई हैव नो टाइम, ओह मैं अपने काम पे जाता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ पे साइकिल चलानी सिखा दूं, मेरा नुकसान होगा काम का। उसने उसे कहा कि यार अच्छा तू मुझे सिखा, तुम मुझसे पैसे ले लेना। इधर से उसके येन में आइडिया क्लिक किया। उसने कहा यार ये तो काम है बड़ा अच्छा। उसने शुरू कर दिया और लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे साइकिल चलानी सीखना शुरू हो गए। वाह हम तो यहाँ पे देखो ना खुद ही पहले कैंची चलानी सीखते हैं, उसके बाद हम हौली हौली गद्दी पे जाते हैं, फिर हौली हौली 3 4 5 6 यारी डिग के ते फिर ਅਸੀਂ ਰਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 5-6 ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। हाय हाँ तो साहब तो वही पड़ जाता है ना। देखो ना जरा, जैसे गौरी भी बता रहा है कि मैंने तो बहुत से लोगों को साइकिल चलाने में मदद दी है, हाँ इसका कोई मुआवजा नहीं लिया इसने। इस केस में यही तो दिलचस्पी है। हाँ जी और अजीब भी ये इसीलिए मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। इस बच्चे ने सिर्फ 2 साल साइकिल चलाने की तरबियत देकर $39,000 यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमा लिए। वाह जी वाह। और ये बात इतनी फैल गई है कि चीन का मीडिया अब इसके घर पहुंच गया अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए। ये तड़ा ताड़ उधर के मीडिया के ऊपर चल रहा है वाह कि भाई जी ये देखो साइकिल चलाने की तरबियत दे के इस बंदे ने किन्ने पैसे कमा लेने। इस लड़के ली ने मीडिया को बताया जी कि जब उसे शंघाई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया हाँ जी तो उसने फिर फारग टाइम में साइकिल चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसे एक बंदे ने कहा मुझे सिखाओ, उसने कहा मेरे को टाइम नहीं है, उसने कहा भाई जी पैसे लो, उसने कहा ले आओ रहा। उसके बाद उसका ध्यान पड़ गया, उसने कहा कि यार मैं तो यूनिवर्सिटी की फीस अखराजात इसी काम से निकाल सकता हूँ। वाह। सही कई स्टूडेंट होते हैं ना वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस इकट्ठी कर लेते हैं, हाँ जी उसने साइकिल पढ़ा के तो अपनी फीस इकट्ठी कर ली। वाह जी वाह। अब मेरा ख्याल है कि उसने पैसे बटोरने के लिए को 2 हफ्ते थ्योरी पढ़ाई होगी। आहा। तब
स्टूडेंट, ये हैंडल है, साइकिल को इधर से पकड़ना है, ये जो जगह है गद्दी है, इसके ऊपर तशरीफ रखते हैं, और ये जो दाईं तरफ लगा हुआ है इतना सा शामी कबाब, ये पैडल होता है। आपने अपनी दाई टांग घुमा के ऊपर से लाके इधर तशरीफ रखनी है और अपना दायां पांव इस पैडल के ऊपर रखना है, और उसके बाद जोर लगा के तो साइकिल को आगे ले जाना है। और फिर जब थोड़ी सी साइकिल चल जाए तो फिर गद्दी के ऊपर से तशरीफ उठा के हवा में कर लेनी है और तेज हो जाना। जाहिर है पैसे लेने के लिए उसने थ्योरी पढ़ाई होगी, फिर उसने प्रैक्टिकल शुरू किया। और आप हैरान होंगे कि आप ये घरों में जाके उनके करीब किसी खुली जगह पे स्टूडेंट्स को यानी लोगों को साइकिल चलानी सिखाता है और 800 युआन लेता है। यानी लोग इस कोर्स के इख्तिताम तक साइकिल चलाने के काबिल हो जाते हैं। ली के मुताबिक अब तक वो 700 अफराद को साइकिल चलाने की तरबियत दे चुका है। अरे वाह वाह, जिनकी उम्रें 4 साल से लेके 68 साल तक, 68 इयर्स ओल्ड। जेम्स बॉन्ड अगर स्टूडेंट का कद मेरे जितना हुआ तो उसको साइकिल कैसे सिखाएगा? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਥੜਾ ਲੱਭੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ਆਪ ਥੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਵੋ और साइकिल चलानी शुरू करो और वापसी ते भी फिर थड़ा लब के उतरो। जे थड़ा ना लभे तो फिर शाम तक साइकिल ते ही रहो या फिर डिग के उतर जाओ। जे कोई तुहानू वेख लवे तो उन्होंने कहो जी मैं इंजे ही उतरना हुंदा। थैले में लभ जाएगा थड़ा, ये है ही थड़ी है। ऐसा नलायक आदमी है। साइकिल छोटी भी होती है, हर साइज की साइकिल मिल जाती है, और वो तो फिर चीन है। बिल्कुल जी। अच्छा, जापान में एक ऐसी मुलाजमत करके बहुत सारे नौजवान सालाना 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कमा लेते हैं। अच्छा जी। और वो क्या मुलाजमत है, क्या काम है वो? बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनना। आप हैरान होंगे कि वहां पे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास बैठने के लिए उनके बच्चों के पास टाइम नहीं, इसलिए वहां किसी से बात करने के लिए यानी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बाकायदा लोगों को हायर किया जाता है और फी घंटा के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं और पल्लियों उनको खाना भी खिलाया जाता है और उनको चाय पानी भी पूछा जाता है। अच्छा। और वो आते हैं, आके बाबे की बातें सुनते हैं, उसकी गुफ्तगू, उसके लतीफे। विच लतीफा फिका होवे तो वो कह भी देंदे होणगे कि बाबा जी मैनू छुट्टी दे दिओ तुहाडी। यार जेम्स बॉन्ड मैनू है वीज़ा लवा दे। मैनू तो हुण प्रैक्टिस हो गई है तेरी भरजाई दीयां गल्लां सुन सुन के कन्न पक गए ने। यार मेरा ख्याल है ये लड़का घर नहीं जाता, ये बाहर ही कहीं सोता है। अकल किया करो, क्यों भरजाई से फैंटी खानी है? वो तो माशाल्लाह तगड़ा भी तो एडा हो गया, तेन तो वजनी भी बड़ी जोर दी। अच्छा जी, फ्रांस में भेड़ें चराने की तरबियत देने का भी एक कोर्स है। वाह। बताना मैं ये चाहता हूं कि लोग देखें किस किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस किस तरह की ट्रेनिंग दे के पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये जो भेड़े चराने का है ना जी कोर्स, हाँ जी। वहां एक चरवाहा है जिसने सारी जिंदगी भेड़े चराई हैं हाँ। और वो नए चरवाहों को भेड़ों की नफ्सियात पर लेक्चर देता है। अच्छा। इस काम के एवज वो सालाना 2.5 लाख यूरो यानी 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाता है। कमाल है यार, ये उनको सिखाता क्या है? जाहिर है भेड़े चराने का भी एक तरीका होता है। उनको बताता होगा कि जब भेड़े अपने कान खड़े करें तो आप समझ जाएं कि करीब कहीं भेड़िया उन पे हमला करने वाला है। बस फिर फौरन जूती उतार के बगल में दबाओ और तेज दौड़ जाओ। यह भी सिखाता होगा कि अगर आपकी भेड़ें चरते हुए किसी चौधरी की खेत में घुस जाएं और खेत खराब कर दे और चौधरी आपको पकड़ के कान पकड़वा दे तो फिर आपने किस तरह अपनी जान छुड़ानी है। मुर्गा बनते ही आपने उल्टबाजी लगा देनी है। फिर चोरी कवे फड़ कान, फिर कान पकड़ के मुर्गा बन के उल्टबाजी लगा देनी है। फिर चौधरी अगर दोबारा कहे कि कान पकड़ो तो उसको कहें कि चौधरी साहब मेरे च फॉल्ट है, मैं मुर्गा बनता हूं तो मेरी उल्टबाजी लग जाती है। ये बात सुन के अगर चौधरी का हासा निकल जाए तो तेज दौड़ जाए और अगर वो कहे कि चलो फिर ठीक है कोई आसान सजा दे तो वो फिर भुगत लो।
या फिर उनको बताता होगा कि भेड़ों को पानी पिलाने के लिए आपने साथ ब्रर कैसे करना है। ये बड़ा मुश्किल काम है। ब्रर 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 ब्रर। ये बहुत कम लोगों से ये होता है। ब्रर। एक दफा मुजफ्फर ने किया था ब्रर, तो इसको लकवा हो गया था। यार ये क्या बात हुई, ये मैं कर सकता हूँ। नहीं, मगर तुम्हारा भेड़ को पानी पिलाने वाला ब्रर नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा चिड़ी को पानी पिला सकते। अच्छा जी, एक और सुने ट्यूशन सेंटर। न्यूजीलैंड में एक बंदा शहद के छत्ते उतारने की तरबियत देता है। ओ बहुत मुश्किल डिग्री है। लो वो तैयार भी हो गए डिग्री लेना। और ये जो बंदा है ये सालाना 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। और सोच वखरी। क्राइस्ट चर्च के करीब एक गांव का रिहायशी है एडम होप। अच्छा। उसने अपने बाप से ये काम सीखा था। और अब शहद के छत्ते उतारने वालों को सही तरीके से शहद उतारने का तरीका सिखाकर वो नोट छाप रहा है। वाह जी वाह। एक को खालस शहद भी बच जाता होने, हाँ एक को पैसे भी बच जाते ने। बिल्कुल। ਉਹਦੇ स्टूडेंट जो लांदे होंगे छत्ता जाके शहद का, तो कह देता होना कि ये जब उतारोगे तो इसमें से मैं पहाड़ डालूंगा। और मुझे यकीन है कि ये बंदा कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट को कहता होगा कि भाई जी जेड़ा तुसी पहला छत्ता लाओगे वो ताड़े उस्ताद दा होए। उसके बाद आप जितने भी छत्ते उतारेंगे उसमें से मैं पहाड़ा लूंगा। पहाड़ा लेती थी ना ये माई तंदूर वालियां, जब हम जाते थे रोटियां लगवाने के लिए तो वो एक पेड़ा बीच में से पहाड़ा रख लेती थी। अच्छा। हाँ, उसे पहाड़ा कहते थे। अच्छा। इसी तरह ये कहता होगा कि भाई जी जेड़ा भी तुसी छत्ता लाओगे हाँ। ओदे जो 4 चमचियां मैं पहाड़ा लाऊंगा। यार जेम्स बॉन्ड, ये छत्ता उतारने की क्या ट्रेनिंग होती होगी? आखिर मक्खियों से बचना को मजाक तो नहीं है ना। वो कुछ ना कुछ तो बताता ही होगा ना कि मक्खियों के छत्ते के पास पहुंच के आपने कौन सा गाना बजाना है कि मक्खियां मस्त हो के आंखें बंद कर लें। और जो आंखें बंद करें तो फटाफट उन्होंने छत्ता चुक के डोल च सुट लो। उसके बाद वो जब आपको डंग मारने के लिए हलमावर हो तो आपने किस तरह उनके डंग से बचना है। ये कोई आसान काम नहीं होता ये शहद का छत्ता उतारना। पूछो गौरी से जिस बेचारे ने कई मक्खियों से डंग खाए हुए। रंग प्यार दा सीने ते खाके चुप रहिए, आए आए आए। चुप रहिए किसे नु सुनाइए ना, डंग प्यार दा सीने ते खाके। देखो ना यार, ये तो बेचारा मुफ्त ये वाला गाना गा के आ जाता होगा, वो पैसे कमा रहा है। यार ये क्या फजूल मालूमात इकट्ठी करके आ गए हो? यार मैं अपने साथियों को इनकरेज कर रहा हूँ। हाँ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी पार्ट टाइम कोई ना कोई इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर खोलें। वाह। मेरे ये में आया कि गोगा अगर रोटी खाने के तरीके बताए तो इसकी तो बड़ी फीस होगी। ये बता सकता है कि आपने किस किस्म का नवाला गोल मटोल बनाना है जिसमें शोरबा डालें तो फिर नवाला पंचर ना हो, या आपने हड्डी को पकड़ के किस एंगल से मुंह में डालना है कि उसकी मेख फौरन आपके मुंह में चली जाए। ये कोई आसान काम नहीं, पूछो गोगे से। या किसी शादी पे जाके आपने जब 1000 रुपया सलामी देनी है तो खाने के वक्त किस तरह आपने 2000 पूरा करना है। यार गोगे का ट्रेनिंग सेंटर फेल हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि इसने स्टूडेंट को बताते बताते तरबियत देते देते सारी रोटी खा जानी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो फिर आज तो बात तो कल ही फिरेगा। अब मैंने तो नहीं कहा, वो तो अफसर कह रहा है। उन्हें तेन मशवरा दिता तू अगे स्टोरियां ही शुरू कर दी ने। हाँ फीके भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने ओए बात सुनो, अब इधर ना कहीं मूंगफली खा खा के छिलके बाढ़ फेंकते जाना। इस तरह तुम सारे रास्ते सड़क पे छिलके फेंकते आए हो, इधर फेंकोगे तो ये सारे कहेंगे कि फीके का दोस्त कितना गंद डालने वाला है। ये तुम्हारे दोस्त ने सड़क पे फेंके छिलके? हाँ, पुलिस 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 नहीं, पुलिस। ये भी तो खा रहा था। पर मैं तो जब खाता हूँ तो
मैं एक जेब से मूंगफली निकाल के खा के तो छिलके दूसरी जेब में डाल लेता हूँ। और अगर मेरी एक ही जेब हो तो मैं फिर मूंगफली खा के छिलके भी फिर उसी जेब में ही डाल लेता हूँ। फिर जरा जेब में हाथ डाल के तो तोड़ के अंदाजा लगाना पड़ता है कि कौन सी दाने वाली मूंगफली है और कौन सा छिलका है। और यार साल में 2-3 दफा तो मूंगफली खानी होती है, इतनी पाबंदियों के साथ खाएंगे तो फिर मजा नहीं आता। तो क्यों साल में 2-3 दफा खाते हो? ज्यादा दफा खा लिया करो। और जितनी महंगी हो गई हुई है 2-3 दफा ही खा लें तो बड़ी बात है। अब तो मूंगफली भी लेने जाए तो बंदा सोचता है कि 100 रुपए की मूंगफली लेनी है तो 100 रुपए दियां 6 रोटियां लेके घर चले जाओ। मूंगफली तो चस्का ही है, तो रोटियां तो सब नहीं खानी होती हैं जरूरी। बिल्कुल। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगी है। एक दफा मैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे खड़ा था, एक गोरा और गोरी चिप्स खा रहे थे। उन्होंने खा के रैपर फेंके नहीं, जेब में डाल लिए। ओए भाई, बड़े बड़े सफाई पसंद इंसान हैं। ये अपना मुजफ्फर देखो, मुजफ्फर जब मूंगफली खाता है ना तो सड़क पे छिलके नहीं फेंकता, छिलके खाता है और गिरियां सड़क पे फेंकता है। गिड़िया फेंकती तो फिर मजा किस तरह आता है? इस हिसाब से तो गोगा बहुत अच्छा है। ये मूंगफली खाता ही नहीं है, ना ये खुद खाता है ना ये किसी को खाते पीते देख सकता है। अबे वो 3 दिन के सांप। और मैं जब भी किन्नू खाता हूं तो मैं छिलके जेब में डाल लेता हूं, क्योंकि मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। मैं घर जाके आपकी भाभी को कहता हूं ये किन्नू के छिलके सुखा के जर्दे में डालना। बड़ी बात है गोगे, तुम किन्नों खा लेते हो, हालांकि तुम खुद माशाल्लाह गरीब आदमी हो। ये बड़ा फ्रॉड करते हैं रेडियो वाले। इन्होंने रेडियो का ऊपर किन्नों लगाए होते हैं ना, तो ऊपर तीले के साथ गत्ता लगा के लिखा होता है 200 रुपए। बिल्कुल। तो बंदा जाके कहता है जी दे दो 1 दर्जन, लो 200 रुपया। तो कहने ने 200 दे दर्जन नहीं, 200 दे किलो ने। तो किलो तोलते हैं तो ऊपर सिर्फ 3-4 किलो ही चढ़ते हैं। बिल्कुल है। ठीक है, गोगा तो केले खा के भी उसके छिलके नहीं फेंकता। इसको किसी ने बता दिया है कि केले के छिलके टिंड पे रगड़ो तो बाल आएंगे। गोगे की टेंड है। मैंने कहा गोगे तुमने वेग लगाई हुई है? कहता है नहीं, पुट के देख लो। मैं दी वेग पुटन लगा तो इन्हें दोवे हाथ ही थे रख ले। मैंने कहा अब छोड़ो ना, क्यों पकड़ी हुई है वेग? कहता मैंने वेग नहीं पकड़ी हुई, जब तुम बाल खींचोगे तो मुझे दर्द होगी। ठीक है, इस दफा तुमने कौन कौन सा फ्रूट खाया है? मैंने तो पिछले महीने केले भी खाए थे, अमरूद भी खाए थे और सेब भी खाए थे। तुमने कहाँ खाए? जब मलकों की दादी फौत हुई थी तो कुलों पे खाए नहीं थे। यार कटे हुए को ना, तो जो सबूते लेके आते हैं वो भी काट के ही खाते हैं। फीके, अगर तुम मंडी से जाके फ्रूट खरीदो तो तुम्हें वहां से सस्ता मिलेगा। लो जी, वो कैसे सस्ता हो गया? पहले बस ते बह के मंडी जाओ, उथे जाके फिर अपनी दिहाड़ी खराब करो ते फ्रूट खरीदो, उतो फिर बस ते बह के वापस आओ। फैक्ट्री दी दिहाड़ी भी गई ते फ्रूट भी फिर होने दा ही पै गया। उंज भी मंडी वाले कहते हैं कि भाजी असी किलो नहीं बेचदे, धड़ी लेनी है ते ले लवो। बंदा उतो धड़ी लैके ते आके सड़क ते रख के 4 किलो बेचे ते फिर किलो काट लैके जाए। तो अच्छा है ना, साथ बिजनेस भी हो जाता है। लो उथे सड़क ते रख के बेचो ते उतो छापा पै जावे ते दौड़ा लग जान। वो आ जाते हैं वो
फोर्स वाले, वो हमारे मोहल्ले का जो पासलम है वो लगाते हैं ना रेड़ी रेड़ी, वो कहते हैं हर दूसरे दिन ही रेड़ी ते छापे पैंदे ने। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। मेरी अम्मा भी कहती है कि तेरा दोस्त मनुष्य है, कहती है जो तेन फैक्ट्री मिलन गया सी ते तेरा ओवर टाइम बंद हो गया सी, ए तेरे अब्बे नु लाड़ी ते चढ़ान गया सी ते तेरा अब्बा लाड़ी चढ़दा डिग पिया सी, तेरी खाला पिंडों आई सी ते स्टेशन ते तेरे नाल ओनू लैन गया सी ते खाला दा टैची रेल गड्डी च रह गया सी। अच्छा जी, लो फिर आज तो बात तो कल ही फिरेगा। मैंने तो नहीं कहा, वो तो अफसर कह रहा है। उन्हें तेन मशवरा दिता, तू अगे स्टोरियां शुरू कर दी ने। ये मेरा यार है छाना, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। हाय वाह, हाँ? ये जब चीज लेता है ना तो ये अद्धी मुझे देता है, मैं जब कोई चीज लेता हूँ तो फिर मैं इसको अद्धी देता हूँ। वाह, ਉਹ ਫੀਕੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸੋਚ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ले 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 ले। नहीं, मैं नहीं इन्हू छड़ना, हाय ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वाह, एक बारी असी साइकिल ते पे जांदे सा, अगे बैठा आया सी, अच्छा, ते असी टांगे च वजे सा ते इहदा सिर पाट गया सी। ओ ए जे ना अगे बैठा हुंदा ते फिर मेरा सिर पाट जाना सी। यानी तू ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ओए ते मेरा इतना अच्छा दोस्त है, करी असी गली च पे जांदे सा, मैं अगे अगे जा रहा सा, मेरे पीछे पीछे आ रहा सी, अच्छा, ते पिछों सूबेदारां दा कुत्ता निकल के इनू पै गया सी, ओने दी लत्त ते चक वड दिता सी। हाय जे ए अगे हुंदा ते मैं पिछे हुंदा ते ओने फिर मेरी लत्त ते चक वडना सी। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਫੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। एक बारी असी गली च जा रहा था, धुंध बहुत थी, अच्छा, ते हम एक जगह पे लड़ पड़े, ओ ए सज्जे मुड़ गया, मैं खब्बे मुड़ गया, ए जो सज्जे मुड़िया ते इहदे च रक्षा वज्जा सी, जे मैं सज्जे मुड़दा ते मेरे च वज जाना सी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। एक काड़िया सी कोई शोरूम ते नौकरी कीती सी मैं ते छाने ने, अच्छा, ते ओ जेड़ा शोरूम वाला सी ओ कहंदा जेड़ी खब्बे हत्थ वाली गड्डी है ना, लेफ्ट हैंड ड्राइव, छाने तू हिसाब काट। ਅੱਛਾ, ते मैनू उन्हें कहा तू ऐ सज्जे हत्थ वाले स्टीयरिंग वाले हिसाब काट दे। सही, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਛਾਨਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। यार क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने। फीके, तुम फ्रूट की बात कर रहे थे। फ्रूट की बात ये कर रहा था कि जो गवर्नमेंट रेट देती है ना फ्रूटों का, जी वो उस पे फ्रॉड होता है। ये रेडियो वाले और दुकानदार लगा लेते हैं उधर वही रेट, हाँ, तो केले वालों ने रेडी पे लगाया हुआ था 300 रुपए दर्जन। अच्छा, तो मुझे अम्मा ने कहा कि जाके केले ले आओ, हाँ, तुम्हारे अब्बे ने खाने हैं, उसका पेट खराब है। हाँ, अब्बा बड़ी शाय कहता मेरा पेट खराब है, मैनू केले खुआओ। हाय मैं कहा 300 रुपए दर्जन केले जो खाना है तो उथों 10 रुपया दी सब गोल दी पूरी क्यों नहीं खांदा? जूती चुक के कहता दसा मैं तेनू, मैं तेरी सुना के डॉक्टर दी सुना। हाय
मैं फिर केले लेने गया था ना, तो वो डेली वाले ने ऊपर लगाया हुआ था 300 रुपए दर्जन। अच्छा तो अम्मा कहती थी अच्छे अच्छे लेके आना। हाँ सही। तो मैंने जाके अच्छे अच्छे केले उठाए तो कहंदा भाई जी ए जेड़े ने 450 दे दर्जन ने 300 वाले इधर पाए आए ने। ते जेड़े 300 वाले सन वो सारे मड़े मुके होए, काले होए सन। मैंने कहा ये अब इतने गले हुए ले लूं मैं 300 के? हाँ बिल्कुल। ये कहते है तू 300 चोनू तेनू अकेला दिया या मैं अपना लेला दे दिया। रेडे का साथ उसने अपना लेला बांधा हुआ था। इके तेरे नालों तो फिर गोगा ही ठीक है। ए रेड़ी ते खलो के पहले दर्जन केले खांदा ते फिर ओनू 300 रुपया देंदा है। जे दुकानदार कवे ना 450 वाले ने 300 वाले ए पए ने, कहंदा चल फिर 300 वाले भी दर्जन पैक कर दे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लालटेन में बैठे हुए हल्की हल्की रोशनी, सारे दे चेहरे ने जेड़े बैठे ने जिन्ने भी, वो सारे ही ऐसे गौर ही लग रहे ने। सोच रहा था कि इंसान जो है ये कैसा नशई तबीयत का है। इसको जिस चीज का चस्का पड़ जाता है, जिस चीज का नशा लग जाता है, वो ना मिले तो इसकी क्या हालत हो जाती है। अब तो ज्यादा ही इस तरह की तबीयत के लोग हैं, जैसे चाय कोई पीता है तो उसको चाय नहीं मिल रही तो उसने स्यापा डाला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे पहले नहीं था कभी होता। अगर हम माजी में देखें तो इस तरह का नहीं था होता कि चाय से या लस्सी से या कुछ इस तरह की खाने पीने की चीज से स्यापा ही पड़ जाए। सिगरेट तो खैर वाकई एक बड़ी खतरनाक चीज है, उस पर तो कोई लगा हो और उसे ना मिले तो उसको बाकायदा स्यापा पड़ा होता है और वो परेशान होना शुरू हो जाता है, बल्कि पुठी पुठी बातें करनी शुरू हो जाता है। मगर अब हर चीज का नशा इंसान को बहुत सख्त लगा हुआ है। मुझे असल में ये ख्याल इसलिए आया, मैं कहीं गया हुआ था, वहां पे लाइट चली गई। अच्छा। को घंटा पहले की गई हुई थी। हाँ। तो वहां पे जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही थी ना जी, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, वो मैं सुन के बड़ा मजा ले रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि देखो लाइट चली गई हुई है, अब पता नहीं कब आएगी, मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने थे सुबह के। कोई कह रहा है ये कि लाइट गई हुई है, मेरी फोन की बैटरी लो हो गई हुई है, हाय। मेरे इतना जरूरी फोन आना था। अब फोन की बैटरी लो होना सबसे बड़ी मुसीबत है, पहले हाँ। ब्लड प्रेशर ही लो होता था, बिल्कुल सही। अब फोन की बैटरी लो हो जाती है। फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हला लला हुई हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर चलो ज्यादा लोड शेडिंग नहीं थी होती तो कई जगह पे तो बिजली होती ही नहीं थी। हाँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम गांव जाते थे तो गांव में उस वक्त बिजली नहीं थी। जी। उस घर में जहां रिश्तेदारों की तरफ जाते थे, कोई ऐसा स्यापा नहीं था हमें महसूस होता कि इधर बिजली नहीं है तो ये तो बड़ा डरावना सा घर है या क्या है। वो लालटेन सी उन्होंने जलानी होती थी जी। रात को अंधेरे के वक्त, और वो लालटेन का हम मजा लेना शुरू हो जाते थे। आहा। हमें बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता था कि ये भी एक अलहदा रोशनी है, जी। एक डिफरेंट चीज है। लालटेन में बैठे हुए हल्की हल्की रोशनी, सारे दे चेहरे ने जेड़े बैठे ने जिन्ने भी, वो सारे ही ऐसे गौर ही लग रहे ने। एक मिसाल दी है, मतलब कोई ऐसा वक्त नहीं था पड़ जाता। हाँ जी। कि लाइट चली गई है तो सबको अपनी अपनी टेंशन शुरू हो गई। हाँ जी। भाई अगर नई लाइट बिजली वाली इस्त्री होती थी घर में, अगर वो नहीं चल रही तो फौरी तौर पे कोयले वाली इस्त्री इस्तेमाल हो जाती थी। जी बिल्कुल। मुझे यहां तक याद है कि अगर कोयला गर्म करना, सुर्ख करना, अगर किसी को लेट ज्यादा ही हो रहा है तो वो चूल्हे के ऊपर वो रख के ना जी कोयलों वाली इस्त्री, उसे गर्म करके तो उसके साथ कपड़े प्रेस कर ले। प्रेस हो जाता है। सही। कोई ऐसी टेंशन नहीं थी होती कि बंदा कांपना ही शुरू हो जाए और चीखना ही शुरू हो जाए। कुछ देर के लिए लाइट जाती थी या किसी ऐसी जगह गए हैं जहां लाइट नहीं थी, नहीं है। हाँ। तो इस तरह की भगदड़ नहीं थी मचती जैसी अब मच जाती है। अब तो लोग जो हैं वो उनकी मर्जी का या उनकी जो आदत है उसके मुताबिक कोई चीज ना मिले ना हो तो। या उनकी मर्जी का काम ना हो रहा हो तो वो बकायदा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को नहीं
बर्दाश्त करता। हाँ जी। एकदम उनके घर को ही कोसना शुरू हो जाते हैं जिनके घर लाइट चली गई है। हाँ बिल्कुल। ये किस घर में आ गए हैं? दिल में हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि किड्डा बेवकूफ भाई है, किड्डा नकम्मा आदमी है, इन्हें कोई ऐसा दूसरा नेमुल बदल नहीं रखे या इसने सोलर ही नहीं लगाया हुआ। कह भी देते हैं भाई जी ने सोलर ही नहीं लगाया तुसी, हाय हाय। या कह देते हैं कि हजूर कुछ जनरेटर वगैरह ही जनरेटर कोई नहीं है। और कुछ नहीं तो वो क्या होता था जनरेटर से UPS? पहले? यूपीएस। ओए भाई जी यूपीएस ही लगा लवोगे तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरदे हो। हाँ अच्छा, जो माजी की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब लाइट जाती थी ना जी तो लालटेन जला ली जाती थी। जी जी तो जो नालायक बच्चे होते थे मेरे जैसे ये टैब, जी। वो अगर पढ़ रहे होते थे तो उनकी मौजें लग जाती थी कि उन लाइट चली गई है जी, छुट्टी। मगर जो लायक स्टूडेंट होते थे वो लालटेन जला के फौरी तौर पे तो पढ़ाई शुरू कर देते। पढ़ते थे। हाँ जी। कोई ऐसा मैंने नहीं देखा घर जहां पे कोई बड़ा हलाला हो गई हो और बड़ी टेंशन शुरू हो गई हो कि ये क्या हुआ है। ये क्या हुआ है? अब तो यूं लगता है कि हर चीज क्या पूरे का पूरा इंसान ही बिजली पे शिफ्ट हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। देखो ना जरा, मैं तो उस दिन से डरता हूं जिस दिन गोगा बिजली पे शिफ्ट हुआ। ओए। इसने बिजली पे शिफ्ट होना है और शहर में फिर लंबी लंबी लोड शेडिंग शुरू हो जानी, हाय हाय हाय। क्योंकि इसने को थोड़ी बिजली से तो चलना भी नहीं। हाँ बहरहाल बात मैं कर रहा था कि किसी चीज की आदत हो जाए ना तो उससे छुटकारा पाना फिर आसान नहीं रहता। नहीं हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में यानी माजी में कुछ 2-3 ऐसी चीजें होती थी जो अगर मिस होती थी तो फिर घर में शोर होता था या ऊंची आवाज से बोला जाता था। जी जी। उनमें से एक तो नलका होता था। ये जो नलका है ये हाथ वाला नलका होता था, हैंडपंप जी। और उस पे ये जरा होता था कि अगर उसकी बोकी गिर गई है, खराब हो गया है या कोई ऐसी बात है जी जी। तो उस पे फिर झाड़ पड़ती थी कि यार पानी वाला नलका भी खराब हुआ है। हाय। तो फिर भाग के साथ वालों के घर से नलका गेड़ के बाल्टी या कूलर भर के ले आते थे। सही। या फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर दादा अबू का हुक्का ठंडा हो गया हुआ है ना ओए होए। जी। तो घर में सबके कान गर्म हो जाते थे। खैर ये तो वैसे मैं मजाक कर रहा हूं। दूसरी चीज ये होती थी कि घर में सब सेहत सुख के साथ रहें। कोई बीमार हुआ है तो फिर कोई शोर पड़ता था कि इसकी तबीयत नहीं ठीक या इसको डॉक्टर के हाँ पास जी, लेके जाओ या हकीम के पास लेके जाओ, कोई बंदोबस्त करो या इसे दवाई ला दो। जी। इस पे को ऊंची आवाज में तकरार होती थी या शोर पड़ता था। अब तो बाखुदा लगता है कि किस तरह जिंदगी गुजरेगी भाई आगे जाके। जिस तरह हमारी अगली नस्लें हर चीज की आदी होती जा रही हैं और उसकी आदत में बाकायदा सर तपाओं तक डूब चुकी हैं। अच्छा सर, वैसे अब हमारी खवातीन को देख लें, इलेक्ट्रिक चीजें इस्तेमाल करने की आदी हैं। वो किचन में स्पेशल चूल्हा हो गया, ओवन हो गया, और अगर लाइट चली जाए तो खाना बाहर से। नहीं तो हमारी खवातीन को क्यों देख लें, तुम्हें क्यों ना देखें? या तो जिया तुमने मूछें रखी हुई हैं तो ना देखें। तुम भी खवातीन में ही शामिल हो। और ये बिल्कुल इसने ठीक बात की है कि किचन के अंदर अब सारा किचन आपका बिजली पे चल रहा है। हाँ जी सर। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वो लकड़ियों वाला चूल्हा या सुई गैस का चूल्हा भी जब आ गया तो वो चूल्हे की रोशनी से ही सब कुछ कर रहे होते थे। सही सही। और बाकी सारा काम चूंकि मैनुअल होता था, अब सारा मशीन पे होता है। हाँ जी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब हम बिजली में डूब चुके हैं। बिल्कुल। अब हमारे घरों में लाइट भी इतनी जल रही होती है, बल्ब इतने जल रहे होते हैं कि लाइट जाए तो हमें बहुत सख्त फील होता है। जी। आप याद करें अगर 30 साल पहले जी जी। घर में ज्यादा से ज्यादा एक बल्ब जल रहा होता था, या बहुत किसी ने को मेहमान आ गए या कुछ है तो 2 बल्ब दो बल्ब जला लिए। हाँ जी। और वो एक बल्ब भी सेन के अंदर चल रहा होता था, बरामदे के साथ लटका हुआ बाहर की तरफ। जी 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 जी। वो एक बल्ब से ही बाहर भी रोशन हुआ है, उसी की रोशनी बरामदे में भी जा रही है। वो एक ही बल्ब से सारा घर चल रहा होता था। अब चूंकि छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर बल्ब ही बल्ब हैं, अब जब लाइट जाती है तो बहुत फील होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। और फिर अब आवाजें भी उतनी ही होंगी जितना बिजली से काम हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था कि कोई कहेगा जी वाईफाई बंद हो गया है, हाय। कोई कहेगा मैंने बैटरी चार्ज करनी थी फोन की। हाँ।
कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, चूंकि हर चीज, हर जरूरत बिजली के साथ जुड़ गई। जुड़ गई है, बिल्कुल सर। टेलीविजन बंद हो जाता है तो शोर पड़ जाता है जी। हाँ, बिल्कुल अजीजी, इतना इन्हिसार हो चुका है बिजली पर कि हम जहां पर इंटरनेट की बात कर रहे हैं या हम टीवी की बात कर रहे हैं, वहां पर लोग अब गीजर भी बिजली पे कन्वर्ट कर चुके हैं, गाड़ियां बिजली पर चार्ज हो रही हैं, चूल्हे की जगह यानी कि गैस का मुतबादिल हमने इलेक्ट्रिक चूल्हे, इस पर भी बात पहले हुई, और इसके अलावा घर की जितनी भी ज़रूरियात हैं और घर से बाहर भी जितनी भी चीज़ें, हम उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। और हम वो वक्त भूल गए हैं कि चलें अभी तो लोड शेडिंग नहीं होती है और बिजली की सप्लाई ठीक है, डिमांड भी है, लेकिन सप्लाई को डिमांड मीट कर रही है। तो वो वक्त भी था कि जब कई घंटे, देहात में तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, शहरों में जो है वो हर 1 घंटे के बाद, वक्फे के बाद लोड शेडिंग होना शुरू हो चुकी थी और हम इस पर बड़ी शिकायत करते थे और मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ हमें दौरानिए देती रही है। जिस तरह 2008 में हमें कहा गया कि जी 2008 दिसंबर में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये बात बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर आई कि जब हमने उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को मीनार पाकिस्तान के बाहर एहतजाजन, क्योंकि विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहाँ पर वो पंखा लेकर बैठे हुए थे और हाथ वाला पंखा चला रहे थे कि जी मेरा ये एहतजाज है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजली हमारे पास मौजूद है, इस वजह से हम इतना ज़्यादा इन्हिसार बिजली पे कर रहे हैं। नहीं, वैसे मैं आपको ये अर्ज करूं अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं हर चीज़ को। पॉपुलेशन जिस कदर तेजी से बढ़ रही है ना जी, आप सप्लाई और डिमांड को बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ गुड। ये जितना मर्जी आप ज्यादा बिजली बनानी शुरू कर दें, ये चंद सालों के बाद ही पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, आपको वो बिजली थोड़ी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ये इस मुल्क का सबसे बड़ा खतरनाक जो मसला है वो है ही पॉपुलेशन। जिस कदर हम अपने आप को अजीबो गरीब आदतें डालते जा रहे हैं और जिस कदर तेजी से हम इन मशीनों के आदी होते जा रहे हैं, इनके नशई होते जा रहे हाँ हैं, जी। या तो फिर आप काला बाग डैम बना के इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना के बिजली पूरी करने की कोशिश करें, सही। वरना जिस तेजी से पॉपुलेशन वाला डैम चल रहा है ना जी, ये छोटे छोटे डैम उसके आगे नहीं पूरे पड़ेंगे। अजीजी, मेरे घर में आज भी लोड शेडिंग हो तो लालटेन ही जलती है। मैंने बच्चों को आदत नहीं डाली यूपीएस की या बिजली की। मैंने कहा नहीं नहीं, जैसे जो है वो होगा। बहुत अच्छा करते हो। वैसे भी माशाल्लाह लालटेन जला के जब तुम नन्हे मुन्ने उधर फिरते होगे तो बच्चे यूं ही समझते होंगे कि पुतली तमाशा हो रहा है। और दाद ना देना, आगे से जुगत ही करना। अच्छा जी, बहुत अच्छे। इधर कट कर दो जी। अजीजी शुक्र करो ये लालटेन जला लेता है, वरना ये तो इतना कंजूस है, ये शीशी में जुगनू डाल के भी लाइट कर सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।